پاکستان میں گائے، بھینسوں، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان جانوروں کی متعدد نسلیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ کی سالانہ کل پیداوار 27 ملین ٹن ہے۔ دودھ کی کل پیداوار کا تقریباً 70% بھینسوں سے 25% گایوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بھینسوں کی نسلیں ہمارے ملک میں پائی جانے والی بھینسوں یعنی نیلی راوی اور کنڈی کی دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا بھر کی بھینسوں کی تمام نسلوں سے زیادہ ہے۔ گائے کی نسلیں ساہیوال گائے فی بیانت اوسطاً 1800 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ ایسے جانوروں کی بھی کمی نہیں جو ایک بیانت میں 3000 لیٹر اور روزانہ 10 سے 12 لیٹر دودھ دیتے ہیں۔ ریڈ سندھی دودھ کی پیداوار تقریباً 1600 لیٹر فی بیانت ہے۔ چولستانی گائے علاقے کی بہترین دودھ دینے والی نسل ہے جو کم خوراک کھا کر بھی دودھ کی اچھی پیداوار دیتی ہے۔ تھرپارکر یا تھری دودھ کی اوسطاً پیداوار 1500 لیٹر ہے۔ مخلوط یا دوگلی نسل فریجن ساہیوال کراس گائے پیداواری دور میں اوسطاً 2600 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ جرسی ساہیوال کراس نسل کی گائے 2200 لیٹر، جبکہ ساہیوال کراس غیر معروف نسل کی گائے سے حاصل ہونے والی دودھ کی پیداوار 3200 لیٹر ہوتی ہے۔ خالص ہولسٹین فریشن سرد اور سرد مرطوب علاقوں کی مشہور ڈیری نسل ہے جو کہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر دنیا کے بیشتر ممالک میں برآمد ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی بیانت میں اوسطاً 7250 لیٹر دودھ پیدا کرتی ہے۔ دودیل جانوروں کا انتخاب ڈیری فارمنگ کو تجارتی سطح پر استوار کرنے کے لیے دودھ دینے والے اعلیٰ جانوروں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ بنیادی عنصر ہے جس پر ڈیری فارم کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس ضمن میں دودھ کی پیداوار کے اعتبار سے نمایاں خصوصیات کی حامل نسلوں اور جانوروں کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہے۔ نسل کے انتخاب میں ذاتی پسندیدگی، علاقائی تقسیم، مقامی آب و ہوا اور سرمایہ جیسے عوامل کا بڑی حد تک عمل دخل ہے۔ انفرادی سطح پر دودیل جانوروں کے انتخاب کے وقت دو اہم بنیادی اصول ذہن نشین رکھیں۔ ایک جانور کی ظاہری شکل و صورت اور دوسرا اس کے اندر پوشیدہ موروثی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال۔ ایک طریقہ شجرہ نسب کی بنیاد پر انتخاب کرنا ہے۔ شجرہ نسب کو استعمال کرتے وقت ریکارڈ کے صحیح اور ٹھیک ہونے کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے۔ جانوروں میں اگر مندرجہ ذیل اوصاف موجود ہوں تو انہیں اقتصادی طور پر ڈیری کے لیے موزوں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جلد سن بلوغت کو پہنچ کر ملاپ کے قابل ہو جانا، پہلی بیانت کم سے کم ممکنہ عمر میں ہو، فی بیانت زیادہ سے زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت موجود ہو، 2 بچوں کا درمیانی وقفہ کم سے کم ہو، خشک عرصہ کم سے کم ہو، بچہ دینے کے بعد جلد از جلد باہر میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، FTR بہتر ہو یعنی کم خوراک کھا کر دودھ کی زیادہ پیداوار دیتا ہو، جانور ظاہری طور پر تندرست و توانا ہو اور بیماریوں سے پاک ہو، حیوانہ اور تھن سوزش حیوانہ کی مرض سے پاک ہو، سارے تھن نرم بغیر کسی ناڑ کے ہوں اور دودھ کی دھار زیادہ باریک نہیں ہونی چاہیے، تھن ہر قسم کے ظاہری عیب سے پاک ہونے چاہیے، رگے شیر لمبی اور شاخدار ہونی چاہیے۔ کسی جانور میں رگے شیر کا نمایاں اور لمبا ہونا اس جانور کے زیادہ دودھ دینے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ڈیری فارم کی تعمیر اور جانوروں کی رہائشی ضروریات، جانوروں کا معیاری رکھ رکھاؤ اور دیکھ بھال ڈیری فارم کی معیشت پر مثبت طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جانوروں سے بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لیے جہاں خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے وہاں ان کی رہائشی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ جانوروں کو موسمی تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جانوروں کے لیے رہائشی ضروریات کا انتظام کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جگہ کا انتخاب ڈیری فارم کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت ایسی جگہ منتخب کریں جو کہ پختہ سڑک سے قریب ہو، رقبہ زرخیز ہو اور پانی وافر مقدار میں مہیا اور پینے کے قابل ہو تاکہ چاروں کی کاشت کی جا سکے۔ علاقے میں بجلی کی سہولت موجود ہو، جگہ کسی شہر یا قصبے کے قریب ہو۔ عمارت کا رخ جانوروں کی رہائش کا رخ شمالاً جنوباً ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے دھوپ بہتر طور پر شیڈ میں داخل ہو سکے گی جو کہ نہ صرف فرش خشک رکھنے میں مددگار ہوگی بلکہ جراثیم مارنے میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ حفظان صحت کے اصول
हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के पेश नजर फार्म की तामीर ऐसे इलाके में की जानी चाहिए कि जहाँ करीब कोई आबादी न हो, ताकि मुताफिर हवा और दीगर हशरातुल अर्ज़ की बहुतात से लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इमारत की तामीर, इमारत ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्ती होने के साथ साथ पायदार और देरपा हो। 3 अतराफ में ईंटों की पुख्ता दीवार बनाकर सामने की तरफ ईंटों के सतून खड़े करके ऊपर आयरन एस्बेस्टॉस या सरकी पर मिट्टी डालकर छत तैयार कर दी जाए तो आरामदेह, पायदार और सस्ती रिहाइशगाह तैयार हो जाती है। एक गाय भैंस के लिए 40 मरबा फुट छती हुई और इसके दुगने तूलो अर्ज की खुली जगह दरकार होती है, जिसकी चारदीवारी के साथ जानवरों की तादाद के मुताबिक पुख्ता खुरली तामीर की जाए। इसी तर्ज की एक खुरली पहले के मुखालिफ सम तामीर करके इस पर नलका या पंप नस्ब किया जाए जहां जानवर पानी पी सके। चारदीवारी के बाहर सायादार दरख्त लगाने चाहिए ताकि जानवर शेड में सुकून महसूस करें। शेड से बाहर थोड़े फासले पर जोहड़ जरूर बनाएं ताकि भैंस अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें बैठ और नहा सके। इमारत की अक़साम, जानवरों की इमारत को 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। ऐसी इमारत जिनमें जानवरों को खुला रखा जा सकता है, ऐसी इमारत जिनमें जानवरों को बांध कर रखा जाए। गाय भैंसों के लिए शेड की तामीर, गाय भैंसों के लिए शेड की तामीर 2 तरह से की जा सकती है। ऐसे शेड जिसमें जानवरों के मुंह मुखालिफ समत में हो, ऐसे शेड जिसमें जानवरों के मुंह आमने सामने हो। इनमें अव्वलुल ज़िक्र तर्ज़े तामीर कई फ़वाइद की बिना पर दूसरे तर्ज़े तामीर से बेहतर है। डेयरी शेड में एक गाय के लिए 3.5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी जगह दरकार होती है, जबकि भैंस के लिए चौड़ाई 3.5 फुट की बजाय 4 फुट बेहतर रहती है। जानवरों के सामने 2 फुट चौड़ी खुरली बनाई जाए, जिसके सामने वाली दीवार 1 फुट, पिछली दीवार 3.5 फुट ऊंची हो। खुरली की तरफ खुराक डालने के लिए 3 फुट का रास्ता और दरमियान में 6 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद रहता है। जानवरों की पुश्त की जानिब 8 इंच चौड़ी और सिर्फ 1.5 से 2 इंच गहरी नाली इस तरह बनाई जाए कि जानवरों के पांव को नुकसान न पहुंचे। दूध रिकॉर्ड करने का कमरा, ऐसे कमरों में दूध के रिकॉर्ड के साथ साथ दूध होने वाले बर्तनों की सफाई और उनके मुनासिब रख रखाव का इंतजाम होता है। इस कमरे के गिर्द बारीक जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खियां अंदर न आ सकें। ग्वाले खिड़की के अंदर लगे हुए बर्तन के जरिए दूध अंदर उंडेल देते हैं, जो कि एक बाल्टी में जमा हो जाता है और ये बाल्टी एक तराजू से नस्ब होती है। इस तरह जानवरों के नाम नंबर के सामने इसकी सुबह और शाम की पैदावार का अंदाज रजिस्टर में कर लिया जाता है। बछड़ों की रिहाइशगाह, छोटे बछड़ों की बेहतर तौर पर परवरिश और निगहदाश्त के लिए जरूरी है कि उनको बड़े जानवरों से अलहदा रखा जाए। इस मकसद के लिए बाड़े तामीर किए जाएं, जिनमें कमरे भी मुहैया किए जाएं। चारा खाने और पानी पीने की तमाम सहूलतें भी मुहैया की जाएं। कमरे को हद्दुल इम्कान खुश्क रखा जाए ताकि बीमारियों पर काबू पाया जा सके। छोटी उम्र के बछड़ों जिनकी उम्र 2 से 3 माह तक हो, रिहाइशगाह बनाते वक्त 20 से 30 मरबा फीट जगह फी जानवर के हिसाब से मुहैया होनी चाहिए, जबकि इससे बड़ी उम्र के बछड़ों के लिए 30 से 35 मरबा फीट जगह दरकार होती है। सांड की रिहाइशगाह, सांड के लिए भी अलहदा रिहाइशगाह का बंदोबस्त होना जरूरी है। अलबत्ता इस अम्र का ख्याल रखें कि सांड के लिए रिहाइशगाह ऐसी जगह पर बनाई जाए जहां से मादा जानवरों का अक्सर गुजर होता हो। सांड के कमरे की पैमाइश 12 से 10 फुट होनी चाहिए। 10 फुट ऊंचाई हमारे मौसमी हालात के मुताबिक मौजूद है। बच्चा जनने के लिए कमरे, अगर फॉर्म पर बच्चा जनने के लिए अलहदा कमरे तामीर कर लिए जाएं तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि इन कमरों में जानवरों की बेहतर तौर पर देखभाल हो सकती है और बादअज़ां इन कमरों को जरासीम से पाक करने में आसानी रहती है। ऐसे कमरों में हवा की आमदोरफ्त के इंतजामात होने चाहिए, जबकि इनकी तामीर में दीगर बुनियादी अमूर का ख्याल रखना जरूरी है। दोदील जानवरों की नशोनुमा और देखभाल, जानवरों की म्यारी नशोनुमा, देखभाल और अफजाइश डेयरी की मईशत पर मुस्बत असरअंदाज होते हैं। दुधियाल जानवरों की इस्तेदाद कार से कमाहक का फायदा हासिल करने के लिए जरूरी है कि उनके रहन सहन और देखभाल से मुतालिक मंसूबाबंदी की जाए। खुश्क जानवरों की देखभाल,
खुश्क अरसा दोदिल जानवरों के लिए आराम का वक्फा होता है, जिसमें जानवर अपनी जिस्मानी कुव्वतों की बहाली, बच्चे की पैदाइश और दूध पैदा करने की इस्तेदाद-ए-कार के लिए ताकत यकजा करते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि जानवरों की मुस्तक़बिल की कारकर्दगी बड़ी हद तक खुश्क अरसे में जानवरों की देखभाल और रहन सहन की मरहून मिन्नत है। कामयाब और मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग का एक जरी और बुनियादी उसूल ये है कि दोधील जानवरों के खुश्क अरसे में कमी करके उनसे ज्यादा दूध की मिकदार और बच्चों की ज्यादा तादाद हासिल करने की कोशिश की जाए। जब जानवर का दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए तो थनों को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद जानवर के हर थन में एक ट्यूब कैप्राविन दाखिल करें। ऐसा करने से जानवर खुश्क अरसे के दौरान दीवाने की सोजिश से महफूज हो जाएगा। हामला जानवरों की देखभाल। हामला जानवर भी खास तवज्जो के लायक होते हैं। ऐसे जानवरों को दर हकीकत दो अहम फराइज सर अंजाम देने होते हैं, यानी जिस्मानी सेहत की बहाली और तंदुरुस्ती और दूध की बहाली के अलावा रहम में बच्चे की नश्व-नुमा और परवरिश। इसलिए ऐसे जानवरों को इब्तदा ही से अच्छी मुतवातिन खुराक और देखभाल की जरूरत होती है। हमल के आखिरी अय्याम में जानवरों को रेवड़ के साथ बाहर चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए कि कहीं दूसरा जानवर उसको जख्मी न कर दे। बच्चा देने से 3-4 रोज कब्ल और बाद में जानवर को पीने के लिए नीम गर्म पानी और खाने के लिए जूद हजम और कब्ज कुशा खुराक दें। नीज उसे हर किस्म के शदीद मौसमी हालात से महफूज रखें, क्योंकि इस मरहले पर मुख्तलिफ बीमारियां बाआसानी हमलावर हो सकती हैं। जो ही बच्चे की पैदाइश की अलामत जाहिर हो, हामला जानवर को बाकी जानवरों से अलहदा कर लें और उन्हें ऐसी जगह पर रखें जो कि जरासीमों से पाक और साफ हो। बच्चा देने के बाद जानवर को चंद यौम के लिए जूद हजम खुराक फराहम करें। इस मकसद के लिए वनडे में चौकर का इस्तेमाल बढ़ा दें और तकरीबन 1 हफ्ते तक जानवर को खाने के लिए गुड़ बाहिसाब 500 ग्राम रोजाना फराहम करें। दौरान हमल खुसूसी तौर पर पहली मरतबा हामिला नौवर बछड़ियों को दूध दोहने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। दोदिल जानवरों से ज्यादा दूध लेने के लिए सिफारिशात: मवेशी खाने साफ सुथरे और हवादार बनाएं। गाय और भैंसों का जदीद तरीका नस्ल कुशी के जरिए मिलाप करवाएं। कम दूध वाली गाय को गैर मुल्की सांड के मादा तौलीद का टीका लगवाएं और अगर मुमकिन हो तो जानवरों को चराई के लिए भेजें। गर्मियों में जानवरों को सायादार दरख्तों के नीचे बांधें। शदीद सर्दी के मौसम में जानवरों को सर्दी से बचाएं। मुतादिद बीमारियों से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीके लगवाएं। दूध मुकर्ररा वक्त और जगह पर धोएं। दूध धोते वक्त जानवर को पुरसुकून माहौल दें। ग्वाला बदलने से भी दूध की पैदावार मुतासिर होती है, इसलिए कोशिश करें कि रोज बरोज ग्वाला न बदला जाए। जानवरों की खुरलियों में नमक के ढले रखें। जानवरों को जरूरत के मुताबिक ताज़ा और साफ पानी मुहैया करें। जानवरों को मयारी सब्ज चारा वाक़िफ़ मिक़दार में मुहैया करें। मयारी और मुतवाज़िन वंडा जानवर की पैदावार और रोकनी इज्जा के तनासुब को मद्देनजर रख कर दें।